Hello students, this is Parul Kalia, and in this video I will explain you how to calculate hidden goodwill and what is the treatment of workman compensation reserve. This illustration 53, here is ABC our partner and their profit sharing ratio is 2:2:1 and they admitted D for 1/4 share with effect 1st April 2017. As a balance sheet is given, and in this liability side workman compensation reserve has given 80,000 because this is the liability of the firm. That's why workman compensation reserve write in a liability side 80,000. So the accounting treatment under these cases has given the first case if there is no other information. If there is no other information, in this case, this workman compensation reserve will be distributed to all partners. Okay, it means your journal entry will be workman compensation reserve 80,000 debit to A, B, C. In which ratio? Their old ratio 2:2:1. Because the new partner है तो इसको शेयर नहीं मिलेगा. Okay, old partners में ये workman compensation reserve will be distributed. Okay, the second is, here is entry is given in your book, workman compensation reserve 80,000 to A, to B and to C. Okay, here next case is if the claim for workman compensation is estimated at 50,000. it means आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना क्रिएट करा है 80,000 और क्लेम कितना आया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का 50,000. इट मीन्स रिमेनिंग का जो 30,000 है, ठीक है, ये 50,000 तो आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है, ये आप यहाँ से राइट ऑफ कर लोगे. रिमेनिंग 30,000 आपका क्या हो गया बैलेंस, तो वो 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग A, B and C सेम in their old ratio. So your journal entry will be workman compensation reserve 80,000. Here is, this is entry workman compensation reserve 80,000 to provision for workman compensation claim. Claim कितना है आपका 50,000. Okay, and remaining आपका जो 30% है, this is a surplus will be distributed A, B and C in their old ratio. Okay. The third case is if a claim for workman compensation is estimated at 80,000. it means आपका रिजर्व भी 80,000 का है और आपका जो क्लेम है वो भी 80,000 का है. तो होल अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, ये जितना भी आपने रिजर्व क्रिएट किया है वो क्लेम में चला जाएगा. तो योर जनरल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम 80,000. तो योर जनरल एंट्री विल बी workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim. The whole amount will be distributed to provision. तो इसमें कोई भी surplus amount नहीं बचेगा. The fourth case has given if a claim for workman compensation is 1 lakh. It means 80,000 का आपने रिजर्व क्रिएट किया है और आपका क्लेम है 1 लाख का. तो 20,000 आप कहाँ ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये आपका लॉस है, क्योंकि आपने रिजर्व तो क्रिएट किया है 80,000 का बट आपका क्लेम कितने का आ गया जो आपको पे करना है. आपकी लायबिलिटी कितनी है 1 लाख की. 80,000 आप यहाँ से ले लोगे और 20,000 विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वो 20,000 रिवैल्यूएशन का आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. तो योर जनरल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 जो आपको लॉस है, क्योंकि टोटल अमाउंट आपका कितने की क्लेम है 1 लाख का. तो 80,000 तो आपने रिजर्व से ले लिया एंड 20,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. आफ्टर दैट दीज 20,000 विल बी bear by the old partner in their old ratio. In these case your journal entry will be A, capital account debit, B and C to revaluation 20,000. In this illustration X and Y were partner in a firm and their profit sharing ratio is 3:2 and their balance sheet has given creditors, employees, provident fund, contingency reserve, profit and loss account. Okay, so these contingency reserve, profit and loss account, this is a part of a profit will be distributed to old partner in their old ratio. But these employees provident fund, this is the outside liability relating to employer, ठीक है, तो these will not be distributed to partners. Here is in asset side add expenditure, it means deferred revenue expenditure, it's a part of expenses, losses, that's why these will be distributed to old partner in their old ratio. Okay,
बिकॉज ये आपका क्या हो गया, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपके एक्सपेंडिचर है. क्लियर. तो these 20,000 amount will be distributed to X and Y in their old ratio. The next is they admitted JET into partnership on 1st April 2017 and the new profit sharing ratio is 2:1:1. In this question old ratio and new ratio has given. It means you can easily calculate the sacrificing ratio, old ratio minus new ratio, because questions में आपको old ratio भी mention है and new ratio भी mention है, तो आप sacrificing ratio calculate कर लोगे. And the first point is claim on account of workman compensation is estimated at 10,000. In this balance sheet workman compensation reserve here is given 18,000 और आपका claim कितने का आया है 10,000. तो 10,000 आप यहाँ से ले लोगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 8,000. These 8,000 will be distributed to old partners in their old ratio. Okay, टोटल 18 है तो 10 तो आपको पे करना है, दिस इज योर लायबिलिटी, क्लेम है, तो रिमेनिंग 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में. द नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 46,000. हियर इज बैलेंस शीट. इन एसेट साइड इन्वेस्टमेंट आर गिवन. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी दे रखी है 50,000, बट अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी है डिक्रीज होगी. कितनी 46. इट मीन्स 4,000 से क्या हो गया डिक्रीज होगी. तो वो जो 4,000 से डिक्रीज हुई है, यहाँ पे आपने रिजर्व क्रिएट कर रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये आपने इसी ने रिजर्व क्रिएट कर रखा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू क्या है फ्लक्चुएट होती रहती है, मे बी समटाइम इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो 4,000 का आपकी डिक्रीज हुई है वो अमाउंट आप कहाँ से राइट ऑफ कर लोगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन. तो बाकी रिमेनिंग कितना आपका रह जाएगा 4,000, तो आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपका इन्वेस्टमेंट में रह जाएगा 21,000. So these 21,000 will be distributed to old partners in their old ratio. Okay, you have to give necessary journal entries to adjust accumulated profit and losses. Here is journal entry has given the same investment fluctuation reserve, बिकॉज 4,000 आपने जो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है और आप ये इन्वेस्टमेंट को क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी एसेट्स. तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है डेबिट, बट यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 46,000 हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिट. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 4,000 आप यहाँ से ले लोगे, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे कितना रह जाएगा 21,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट 4,000. क्लियर. द नेक्स्ट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. 18,000 आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन यहाँ पे मेंशन है. ओके, और क्लेम कितना है 10,000 का. तो 10,000 का आपको क्लेम क्या है पे करना है और 8,000 आपका सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में. तो जनरल एंट्री क्या होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000, बिकॉज ये आपको पे करना है, दैट्स वाई इसे क्या करोगे आप क्रेडिट करोगे, इट्स योर लायबिलिटी. नेक्स्ट जो आपको ये पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. यहाँ पे भी बैलेंस आपका कितना था 21 रह गया था. ये सब अमाउंट आपका कहाँ आ जाएगा. और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी 10,000 का आपका क्लेम था, 8,000 आपका सरप्लस बच रहा था. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में भी 25,000 का था, 4,000 का आपका क्या है वैल्यू डिक्रीज हो गई थी इन्वेस्टमेंट की, तो रिमेनिंग अमाउंट 21,000. ठीक है, ये सब जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. तो योर जनरल एंट्री विल बी contingency reserve account debit, profit and loss account debit, workman compensation reserve 8,000, investment fluctuation reserve 21,000 to X and to Y in their old ratio 3:2. Okay, now here is in asset side these deferred revenue expenditure has given 20,000, it will be distributed to ओल्ड पार्टनर्स. तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी जब एक्सपेंसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी. तो योर जनरल एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एड एक्सपेंडिचर. ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2. ओके, एंड द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज 61. हियर इज partners Murari and Vora of Chandigarh were partner in a firm and their capital is 1,20,000 and 1,60,000. Okay, on 1st April they admitted Yadav a new partner, ठीक है, as a 1/4 share in the profit. और कैपिटल कितनी लेकर आएगा यादव
2 lakh as is a capital and 90,000 for his 1/4 share of goodwill. कितना शेयर मिलेगा उसे? 1/4, और गुडविल का अमाउंट 90,000. On the date, the creditors of Murari and Vora were 60,000 and bank overdraft was 15,000, and their assets, stock 10,000, debtors 40,000, plant and machinery 80,000, land and building 2,000. It was agreed that the stock should be depreciated by 2,000 and plant and machinery by 20,000. Amount depreciate हो गया आपका. 5,000 should be written off as bad debts and land and building should be increased, appreciated by 25%. You have to prepare evaluation account, capital accounts and the balance sheet of the new firm. In this question, the balance sheet is not given. Okay, then first of all you have to prepare your balance sheet. It means memorandum balance sheet you have to prepare, or after that you have to easily calculate the missing amount. In this memorandum balance sheet, here is creditors is given. Here is creditors 60,000. You have to write credit side. Bank overdraft 15,000. Both write in a credit side. And the capital both Murari कितनी दे रखी है? 1,20,000 and 1,60,000. And the assets has given. Here is stock 10,000, debtors 40,000. You have to write asset side, stock and debtors. The next is प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख. ओके, ये आपको दे रखा है. तो आफ्टर दैट आप इसका टोटल करोगे. लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है? 3,55,000, और यहाँ का टोटल आपका कम आ रहा है. तो लायबिलिटी में से आप एसेट्स माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपका क्या आ जाएगा? मिसिंग फिगर आपका आ जाएगा. तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है? इस सब में एसेट्स में आपको स्टॉक भी मेंशन है, डेटर्स, ठीक है, मशीनरी, प्लांट. इट मीन्स ये आपका क्या है? कैश. तो इसमें से कैश जो है आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है. लायबिलिटी साइड में से ये अमाउंट आप ये वाला लेस कर दोगे तो रिमेनिंग दिस कैश इज योर बैलेंसिंग फिगर इज 25,000. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर मेमोरेंडम बैलेंस शीट. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. In revaluation account, here is information has given. It was agreed that the stock की वैल्यू आपकी क्या हो गई है? डिक्रीज होगी है 2,000. तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी राइट इन ए डेबिट साइड 2,000. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 20%. यहाँ पे कितना दे रखा है? 18,000 का आप 20% निकालोगे, ये कितना आ जाएगा आपका? 16,000. डिक्रीज हो गई है, राइट इन ए डेबिट साइड. हेयर इज डेटर आपको 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स. इट मीन्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स. डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने? 5,000 से. तो 2 डेटर्स राइट इन ए डेबिट साइड. ओके, एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड 25%. तो लैंड एंड मशीनरी कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख. 2 लाख का 25% आपका कितना आ जाएगा? 50,000. हियर इज द क्रेडिट साइड टोटल इज 50,000 और डेबिट का कम है. इट मीन्स इफ योर क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड यू गेट ए प्रॉफिट. तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27,000. दीज 27,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. नथिंग इज मेंशन. इट मीन्स कुछ भी रेशियो मेंशन नहीं है. तो ये आपके क्या है? इक्वल पार्टनर. इट मीन्स 1:1. तो दीज 27,000 विल बी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेशियो 1:1. ओके, आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर योर कैपिटल अकाउंट. ओके, इन कैपिटल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट बाय बैलेंस BD. इट मीन्स बैलेंस आपको कितना दे रखा है? मुरारी का आपको दे रखा है 1,20,000. हियर इज 1,60,000. और न्यू पार्टनर कितना लेके आया है? बाय कैश कितना लेके आया था? इट्स 2 लाख. 2 लाख वो कितना लेकर आया अपना? प्रॉफिट का, ठीक है. 2 लाख उसकी कैपिटल है एंड सॉरी 20,000 वो क्या है? गुडविल का अमाउंट लेकर आया है. ओके, तो हियर इज जनरल एंट्री विल बी बाय बैंक 2 लाख. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. तो इससे भी कैपिटल का पार्टनर्स के कैपिटल क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. दैट्स वाई दीज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राइट इन ए क्रेडिट साइड. ओके, बाय रिवैल्यूएशन 13,500 इन बोथ द पार्टनर. द नेक्स्ट जो नया पार्टनर यादव है वो कितना अमाउंट लेके आया? 90,000 गुडविल का, ठीक है. 90,000 गुडविल का जो अमाउंट है वो कौन किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है आपका. तो ओल्ड रेशियो विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इट मीन्स 1:1. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
45,000 एंड 45,000, क्योंकि यहाँ आपको न्यू रेशियो मेंशन नहीं है तो आपकी ओल्ड रेशियो विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 45,000 एंड 45,000. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस. तो आप मुरारी का टोटल अमाउंट करोगे. यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1,78,500. सेकंड का आ रहा है 2,18,500 एंड यादव का कितना है 2 लाख. ओके, तो दिस इज योर बैलेंस. राइट टू बैलेंस CD carry down. You have to write 1,78,500. After this capital account you have to prepare your balance sheet. Okay, बैलेंस शीट में आप टोटल आपके क्रेडिटर्स कितने हैं. क्रेडिटर्स ऑलरेडी आपके 60,000 थे. यू राइट 60,000. नाउ कैश 25,000. यहाँ पे आपने कैश कितना निकाला है 25,000. सेकंड मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे टोटल आपका कैश कितना लेकर आया था न्यू पार्टनर 2 लाख तो कैपिटल के लेके आया, 90,000 वो गुडविल के लेके आया. ये आपके ऐड होंगे और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट के जो माइनस करोगे ये आप माइनस कर दोगे 15,000. क्लियर. तो ये आप बैंक का ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. क्लियर. ये कैश तो 25 है और बैंक के आप ही कितने आ जाएंगे. बैंक बैलेंस आप देख लो कैलकुलेट कर लोगे. बैंक बैलेंस इट मीन्स 2 लाख आपका नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, ये गुडविल का अमाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट योर 2,75,000 राइट इन ए एसेट साइड. ओके, हियर यू राइट कैपिटल. तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अभी आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला है. यू हैव टू राइट दिस बैलेंस. ठीक है, 1,78,500. नेक्स्ट का है 2,18,500 एंड यादव का कितना आपको दे रखा है 2 लाख. यू हैव टू राइट दिस कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू कितनी आपकी इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है, टोटल अमाउंट क्योंकि स्टॉक की पहले यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ पे आपको स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी 10,000. उसके बाद आपकी वैल्यू क्या हो गई थी डिक्रीज़ हो गई थी 2,000 से. इट मीन्स कितनी रहेगी अब आपकी 8,000. यू हैव टू राइट 8,000 एज इट इज़. यू हैव टू कैलकुलेट डेटर्स. डेटर्स में आपने बैड डेट्स नया क्रिएट करा था तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई थी. यहाँ पे डेटर्स आपके कितने दे रखे थे, यहाँ पे डेटर्स आपको दे रखे हैं 40,000. 40,000 में से डेटर्स आपने 5,000 माइनस कर दोगे 40 में से. रिमेनिंग 35,000 यू राइट इन ए न्यू बैलेंस शीट में आप मेंशन करोगे. एज इट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस आपका कितना आ जाएगा 2,50,000. क्लियर. योर क्वेश्चन इज कंप्लीट. And the next topic is hidden goodwill. Hidden goodwill means sometimes the value of goodwill is hidden in the questions and you have to calculate the amount of hidden goodwill. In such cases, the amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm and the profit sharing ratio of the old partners. Hidden goodwill को कैसे calculate करोगे. The total capital minus adjusted capital of all partners. It means जो फर्म की टोटल कैपिटल है माइनस उसमें जो आप एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर दोगे. एंड हाउ टू कैलकुलेट टोटल एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर. इट मीन्स जो आपका नया पार्टनर का जो शेयर है उसको आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको क्रेडिट में है तो ऐड करोगे, एसेट साइड में दे रखा है तो माइनस करोगे, एज इट इज़ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, लॉस है तो माइनस करोगे, प्लस रिजर्व माइनस गुडविल और माइनस एड एक्सपेंसेस जो आपको एसेट साइड में दे रखे हैं वो आप माइनस करोगे. तो जो रिमेनिंग बैलेंस है दिस बैलेंस विल बी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. Here is example is given. A and B are partner with capital of 30,000 and 20,000. They admitted C as a partner with 1/4 share. Okay, and C is to contribute 24,000 has capital. तो how to calculate total capital? Total capital कैसे calculate करोगे. जो C का शेयर कितना है 24,000 सॉरी उसकी कैपिटल है और उसका शेयर है 1/4. तो इसके शेयर को 1/4 को आप रेसिप्रोकल कर दोगे इंटू 4/1. तो ये टोटल 96,000 इज़ योर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. ठीक है. एंड हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर. बट द कंबाइंड कैपिटल कितनी है ए बी सी की. ये कितनी आ रही है आपकी. ए की है 30,000, बी की है 20,000 एंड सी की है
24,000, तो टोटल आपकी एडजस्टेड कैपिटल इनकी कितनी है 74,000. ओके, बट टोटल कैपिटल कितनी आई थी अकॉर्डिंग टू, अगर आप न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग देखो तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 96,000. तो 96,000 में से ये जो एडजस्टेड कैपिटल है फॉर ऑल द पार्टनर ये कितनी है 74,000. ये आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी, इट मीन्स 22,000 इज योर हिडन कैपिटल, हिडन गुडविल. ओके, in this illustration you have to calculate hidden goodwill. Here is two partners and their profit sharing ratio is 7:3 and their capital is 2 lakh and 1,50,000. They admitted a new partner, Aditi, and her share is 1/6 and Aditi brought 1 lakh his capital. You have to calculate the value of goodwill of the firm. आपको total goodwill calculate करनी है, it means hidden goodwill, and record necessary journal entries from the above transactions on Aditi admission. So how to calculate hidden goodwill? Here is, first of all you have to calculate total capital. Here is 1 lakh, Aditi का शेयर कितना है 1 lakh, और इसका अदिति का कैपिटल है 1 लाख एंड उसका शेयर कितना है 1/6. तो इसके शेयर को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, इट मीन्स 1 लाख इंटू 6/1. तो टोटल आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, टोटल कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ अदिति कैपिटल कितना आ जाएगा 6 लाख. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल. हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, 2 लाख प्लस 1,50,000 एंड प्लस 1 लाख. तो वो आपकी टोटल कितनी आ जाएगी 4,50,000. ओके, टोटल कैपिटल आपकी कितनी थी 6, 4,50,000 आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपकी 1,50,000 इट्स योर हिडन गुडविल. हियर इज गिवन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 लाख शेयर था अदिति का, रेसिप्रोकल कर दोगे उसके शेयर का तो 6 लाख आपकी टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल. तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 2 एंड 1,50,000 प्लस 1 लाख अदिति की कैपिटल तो 450. तो रिमेनिंग डिफरेंस विल बी हिडन गुडविल. अब ये टोटल फर्म की गुडविल है तो यू हैव टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर. तो उसका शेयर कितना है अदिति का 1/6, तो कितना आ जाएगा 25,000. अभी जो 25,000 है वो कैश में नहीं लेके आई, तो इट मीन्स यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट. ओके, तो अदिति करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, ओके, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल, वो शेयर 1 लाख कैपिटल के वो लेकर आई है, बट गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आई है. दैट्स वाई यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट 25,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड.